Hello everyone. So after going through abnormal uterine action part 1, ठीक है, you guys must be waiting for abnormal uterine action part 2 video. So here I am with the part 2 video for the same. So let's start with the revision session. So जो नेक्स्ट टॉपिक अब इसमें आएगा हमने डिस्कस करना है पार्ट 2 में, दैट इज कंस्ट्रक्शन रिंग. सो कंस्ट्रक्शन रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन रिंग. So comes the definition for contraction ring. So it is a persistent localized annular spasm of the circular uterine muscle. As we all know, जो uterus होता है उसके अंदर जो muscles होती हैं they are arranged in a bucket manner. ठीक है, तो जो circular muscles होती हैं uterus के अंदर they are undergone spasm. ठीक है, which results in constriction or contraction ring and it occurs at any part of the uterus but usually at the junction of the upper and lower uterine segment. ठीक है, जो constriction ring है वो ज़्यादातर कौन से पार्ट पे होगी? अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, बट कहीं पे भी हो सकती है अदरवाइज. ठीक है, बट ज़्यादातर कहाँ पे देखी जाती है? अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट में. एंड इट कैन अकर एट द एनी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे ये विजिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन रिंग, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग. ठीक है, एंड विच इज़ लाइक एविडेंट एट द टाइम ऑफ you can say manual removal of placenta. ठीक है, then comes the etiology for contraction ring. So the etiology is unknown but the predisposing factors are malpresentations and malpositions. ठीक है, then clumsy intrauterine manipulation under light anesthesia. ठीक है, मतलब कि आप वो intrauterine manipulation कर रहे हो fetus की, like if you are going for this internal cephalic version or external cephalic version, so that can be the cause. Then next comes improper use of oxytocin. Examples will be like use of oxytocin in hypertonic inertia. ठीक है, use of oxytocin in hypertonic inertia, like patient is in the hypertonic state and we are administering oxytocin to the patient, so that can lead to this condition. Then even it can cause rupture of the uterus also. ठीक है, so that can be the reasons. Then comes the diagnosis of constriction ring. So the condition is more common in primary gravida. ठीक है, primary gravida is a woman who is pregnant for the very first time. ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा common है ये, and frequently preceded by colicky uterus. ठीक है, so एकदम से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगी, सीवियर पेन होने लग जाएगी, सो दैट विल बी द डायग्नोस्टिक फीचर. ठीक है, देन द एग्जैक्ट डायग्नोसिस इज अचीव्ड ओनली बाय फीलिंग द रिंग विद द हैंड इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्राइन कैविटी. बिकॉज ये वाली जो रिंग है दैट इज नॉट फेल्ट पर एब्डामन, तो हमें ये कब पता चलेगा? व्हेन वी आर डूइंग द इंटरनल एग्जामिनेशन एंड वी आर फीलिंग द रिंग लाइक वाइल डूइंग द इंटरनल एग्जामिनेशन. ठीक है, तब हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस हम इसका बना सकते हैं. Then next comes the complications. So complications क्या जाती है? prolonged first stage. तो अगर जो रिंग है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में राइज हुई है तो दैट कैन कॉज prolonged first stage of labor. ठीक है, then prolonged second stage if the ring occurs around the fetal neck. ठीक है, अगर जो रिंग है वो फीटस की नेक के अराउंड फॉर्म हुई है तो इट विल लीड टू prolonged second stage. देन रिटेन प्लेसेंटा एंड पोस्टपार्टम हैमरेज. जैसे कि अभी आपको डेफिनेशन के टाइम पे मैंने बताया था कि अगर थर्ड स्टेज में ये एविडेंट होती है रिंग, सो दैट कैन लीड टू दिस, आप बोल सकते हैं आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग हम इसे बोलते हैं. ठीक है, तो दैट कैन लीड टू रिटेन प्लेसेंटा एंड पोस्टपार्टम हैमरेज. ठीक है, एंड ये कब एविडेंट होगी? व्हेन वी आर गोइंग फॉर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा. और रिटेन प्लेसेंटा तो आपको पता है कब होता है कि 30 मिनट्स हो चुके हैं, बेबी डिलीवर हुए लेकिन अभी तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज retained placenta. Then comes the difference between pathological retraction ring and constriction ring. So this particular difference you can get as an question in your examination. आता है ये question, difference between retraction ring and constriction ring. 5 marks का question आ सकता है, so you should have an answer for the same, right? So here it goes like this. जो retraction ring it occurs in the prolonged second stage, while जो constriction ring होती है that occurs in the first, second और third stage. So जो constriction ring है ये कभी भी हो सकती है, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में. लेकिन जो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है, ठीक है, ये कौन सी में होती है? सेकंड स्टेज के अंदर, राइट. देन पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग जो होती है दैट ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, वाइल जो कंस्ट्रक्शन रिंग होती है दैट इज प्रेजेंट एट एनी लेवल ऑफ द यूट्रस. कंस्ट्रक्शन रिंग कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, बट जो रिट्रैक्शन रिंग है वो हमेशा अपर और लोअर के जो सेगमेंट है उसके बीच में प्रेजेंट होती है.
देन जो रिट्रैक्शन रिंग होती है इट कैन राइज अप, ठीक है, जबकि कंस्ट्रक्शन रिंग जो होती है दे नेवर टेंड टू चेंज देयर पोजीशन. देन रिट्रैक्शन रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो रिट्रैक्शन रिंग होती है वो दैट कैन बी फेल्ट एब्डोमिनली और दे कैन बी सीन पर एब्डोमिनली, बट जो कंस्ट्रक्शन रिंग है दे आर नॉट एविडेंट पर एब्डोमिनली, सो फॉर दैट वी नीड टू डू द इंटरनल एग्जामिनेशन. Then the uterus is tonically retracted, tender and the fetal parts cannot be felt. ठीक है, रिट्रैक्शन रिंग है तो इसके अंदर रिट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फीटल पार्ट्स जो होते हैं वो हम फील नहीं कर पाते. ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन रिंग होती है उसके अंदर रिट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं होती है, जिसकी वजह से हम फीटल पार्ट्स को फिर फील कर सकते हैं, क्योंकि यूट्रस इसके अंदर लेस टेंडर होगा इन कंपैरिजन टू रिट्रैक्शन रिंग. देन मैटरनल डिस्ट्रेस एंड फीटल डिस्ट्रेस और डेथ कैन अकर इन रिट्रैक्शन रिंग. ठीक है, वाइल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन रिंग, ठीक है, डिस्ट्रेस मे नॉट बी प्रेजेंट. देन नेक्स्ट कम पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग में जो रिंग होती है दैट कैन बी रिलीव्ड ओनली बाय द डिलीवरी ऑफ द फीटस. ठीक है, जब बेबी डिलीवर होगा तभी जो रिंग है वो रिलीव हो जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन रिंग जो होती है दे कैन बी रिलीव्ड बाय द यूज ऑफ एनेस्थेटिक्स और एंटी स्पाज्मोटिक्स. तो एंटी स्पाज्मोटिक या फिर एनेस्थेटिक्स के थ्रू हम इसको रिलीव करवा सकते हैं. Then comes the management of constriction ring. So exclude the malpresentation, malposition and disproportion. ठीक है, इसमें मैनेजमेंट हम इस तरह से पढ़ेंगे कि पहले मेक श्योर देयर इज नो malpresentation, देयर इज नो malpositioning, देयर इज नो नथिंग लाइक CPD. ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर पिथेडिन. ठीक है, पिथेडिन जो है दैट विल एक्ट एज अ एंटीस्पाज्मोटिक, जिससे कि रिंग जो है वो रिलीव हो जाएगी. सो दे मे बी ऑफ बेनिफिट. Then in the second stage, deep general anesthesia and amyl nitrate inhalation are given to relax the constriction ring. ठीक है, सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दे सकते हैं और अमाइल नाइट्रेट इनहालेशन के थ्रू दे सकते हैं. मेथड मतलब यूज हम ड्रग कर सकते हैं, यूज ये वाली फॉर गिविंग डीप जनरल एनेस्थीसिया विच इज हेल्पफुल इन रिलैक्सिंग द कंस्ट्रिक्शन रिंग. देन इन थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज में भी वी कैन गो फॉर डीप जनरल एनेस्थीसिया. ठीक है, एंड विच इज़ फॉलोड बाय मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, क्योंकि जो प्लेसेंटा है उसके अराउंड रिंग फॉर्म हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग. तो उसको रिमूव करने से पहले हम क्या करेंगे, डीप जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दे सकते हैं. उसके बाद जो रिंग होती है वो रिलीव हो जाती है एंड देन द प्लेसेंटा कैन बी रिमूव बाय द मेथड ऑफ मैनुअल रिमूवल. राइट, देन लास्ट टॉपिक आपका अब इसके अंदर जो आता है दैट इज सर्वाइकल डिस्टॉर्शिया. ठीक है, ये टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, अभी रिवाइज करेंगे फिर से सर्वाइकल डिस्टॉर्शिया. सो सर्वाइकल डिस्टॉर्शिया की डेफिनेशन आती है सबसे पहले. सो देयर विल बी फेलियर ऑफ द सर्विक्स टू डायलेट विद इन अ रीजनेबल टाइम इन स्पाइट ऑफ गुड रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सो जो सर्विक्स होगा वो डायलेट नहीं हो पाएगा. ठीक है, in spite of good uterine contraction, मतलब there will be good uterine contractions but there will be lack of the, yeah, we can say there will be failure of the cervix to dilate. then varieties आ जाती हैं इसकी. ठीक है, cervical dystocia की. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो प्राइमरी जो सेकेंडरी है, ठीक है, दैट वेराइटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक सर्वाइकल डिस्टॉर्शिया और सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टॉर्शिया विच इज ड्यू टू सर्वाइकल स्टेंसिस such as a sequel to previous amputation, cone biopsy, extensive cauterization or obstetric trauma. मतलब that woman has undergone some previous surgery or some previous obstetrical procedure like cone biopsy या amputation of cervix. ठीक है, या और some extensive cauterization or obstetric trauma was there in the previous delivery. ठीक है, so that can lead to organic or secondary dystocia, cervical dystocia. Then there can be some presence of some kind of organic lesions like cervical myoma or carcinoma like CA cervix. So that can be the reason for cervical dystocia. Then comes the primary cervical dystocia, जिसे हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, functional cervical dystocia. So in spite of the absence of any organic lesion and the well effacement of the cervix, the external os fails to dilate. So what happens in functional or primary cervical dystocia? ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, जो इफेसमेंट होगी सर्विक्स की दैट विल बी गुड. ठीक है, लाइक इट विल बी मोर देन 70% और 80%. ठीक है, बट स्टिल जो एक्सटर्नल ओस होती है इट विल बी लाइक इट विल फेल टू dilate. ठीक है, एंड प्लस देयर विल बी नथिंग लाइक एनी ऑर्गेनिक लीजन, प्रीवियस एंड ऑर्गेनिक लीजन कोई प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन फिर भी फेसमेंट अच्छी होने के बावजूद भी जो एक्सटर्नल लॉस होगी वो डायलेट नहीं हो पाएगी. देन दिस मे बी ड्यू टू लैक ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, किस वजह से होगा ये, जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट नहीं हुआ होगा, राइपनिंग नहीं हुई होगी उसकी अच्छे से,
during the pregnancy, or there can be cervical spasm resulting from overactive sympathetic tone. ठीक है, और sometime what happens, जो cervix होता है, ठीक है, वो overactive होता है, उसके अंदर भी contractions होती हैं जिसकी वजह से वो फिर dilate नहीं हो पाता है. So that can be the reason for functional or primary cervical dystocia. Then comes the complications of cervical dystocia. So there will be annular detachment of the cervix. Surprisingly, the bleeding from the cervix is minimal because of fibrosis and avascular pressure necrosis leading to thrombosis of the vessels before detachment. Okay, so due to this cervical dystocia, there are chances of annular detachment of the cervix. Okay, then there can be rupture of uterus, ठीक है, following cervical dystocia, and it can even lead to postpartum hemorrhage. ठीक है, when particularly if cervical laceration extends upwards tearing the main uterine vessels. ठीक है, तो अगर cervical laceration की वजह से uterine vessels की भी involvement हुई है, so that can lead to postpartum hemorrhage. So that three are the complications of this. Then next comes the management of cervical dystocia. सो मैनेजमेंट में आपका आ जाता है ऑर्गेनिक डिस्टोशिया सबसे पहले. ठीक है, ऑर्गेनिक डिस्टोशिया अगर है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, विच इज सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोशिया एंड इट इज रिलेटेड विद सम काइंड ऑफ you can say which is related to some kind of other previous organic lesion. ठीक है, या some already like जो पहले से सर्वाइकल ट्रॉमा अगर हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से. तो उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर सिजेरियन सेक्शन विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर managing a case of cervical dystocia. Then next comes functional dystocia. Functional dystocia में आपका आ जाता है पिथेडिन या फिर एंटीस्पाज्मोडिक्स which may be effective. ठीक है, पिथेडिन और एंटीस्पाज्मोडिक देने से भी फंक्शनल डिस्टोशिया थोड़ा रिलीव हो सकता है एंड इट हैज़ शोन सम लाइक रिजल्ट्स ऑफ एफिकेसी. ठीक है, तो पिथेडिन और एंटीस्पाज्मोडिक्स हम दे सकते हैं इन केस ऑफ फंक्शनल डिस्टोशिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डिस्टोशिया. देन नेक्स्ट मेथड इसमें है दैट इज सिजेरियन सेक्शन. ठीक है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम ऊपर ट्राई कर रहे हैं पिथेडिन या एंटीस्पाज्मोटिक्स दे देने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वी कैन गो फॉर सिजेरियन सेक्शन एंड पर्टिकुलरली इफ द फीटस डेवलप डिस्ट्रेस, तब हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. आई होप दिस टॉपिक एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन पार्ट 2 इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन है या एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन टॉपिक जो है वो फिनिश होता है. ठीक है, एंड एज दिस वॉज अ रिविजन सेशन, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. थैंक यू सो मच.